أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی، عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، بہترین صحت اور بہترین زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور جو بہنیں مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا جن کے گھروں میں یا رشتہ داروں میں کوئی بیمار یا کووڈ کا شکار ہے، کورونا کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ پیاری ساتھیوں، کچھ بہنوں نے مجھے پرائیویٹ میسیجز کیے ہیں کہ اپنے کچھ رشتہ دار اس وائرس کا شکار ہے اور وہ لوگ تھوڑا سا پریشان بھی ہیں، اپنے کچھ اتنا ممبرس بھی ادھر ادھر شہروں میں اطلاع آئی ہے۔ تو آپ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ بھی سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس کے جواب میں آپ کو پتہ ہے نا کہ مفہوم جو حدیث کا کہ پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے پیاری بہنوں، ہم کسی کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، یہ تعلق ہی کافی ہے کہ وہ ہماری اپنی بہن ہے، وہ ہماری ساتھی ہے، اور پھر انسانیت کا تعلق تو ہے ہی نا پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے۔ تو یہ بھی ہمیں سیرت نبی سے پیغام ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب بہنیں غائبانہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ آئیے پیاری ساتھیوں، آج ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو یہ نیا ٹاپک ہے، ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب پہلی کلاس تھی تو ہم بہت ہی فکر مند تھے کہ ٹاپک وائز چیزیں ملی ہیں اور 15 ٹاپکس کو کور کرنا ہے۔ سیرہ کو بالترتیب پڑھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، سامنے کتاب ہوتی ہے اور آپ اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سیرہ کے اندر سے ٹاپک کو نکالنا، پک کرنا، اس کے لیے آپ کو پوری کتاب ہی کھنگالنی پڑتی ہے، کئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اس ٹاپک کی چیزوں پہ فوکس نگاہ رکھ کر اس کو پک کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ ابھی اپنے اسائنمنٹ کو کریں گی، جو آپ پریزنٹیشن بنائیں گی، تو آپ کو اس چیز کا ضرور اندازہ ہوگا کیونکہ ہم نے بھی آپ کو ٹاپک دیے، تو اس پہ تھوڑی سی ظاہر ہے گرفت کرنا ایک بہت ہی مطلب ایک بہرحال مزیدار سا کام ہے الحمدللہ، اور اس سے بہت زیادہ آپ کی اپنی نالج بھی گین ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیاری اور عزیز بہنوں، ہم لوگ نے پچھلے ہفتے جو ٹاپک لیا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ افراد کی تربیت یا افراد کی تیاری، یاد ہے نا آپ کو؟ اسی ٹاپک کی جو اگلی کڑی ہے نا، اس میں مجھے لگتا ہے کہ افراد کی تربیت میں تو سبھی لوگ آ گئے، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، سب آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نوجوان تھے نا، وہ بڑا فوکس کام تھا۔ اور مجھے بہت مزہ آیا جب میں نے سیرہ کے اندر سے چن چن کے، زیادہ تر میں نے محسن انسانیت ہی دیکھی ہے، اور محسن انسانیت کے بعد جو میں نے دوسری کتاب کو تھوڑا سا مطالعے کے لیے دیکھا ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی نام بتایا تھا آپ کو کہ رسول اکرم کی حکمت انقلاب، سید اسد بلانی کی یہ کتاب ہے۔ تو بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس ٹاپک کو بہت حد تک کور کیا گیا، بلکہ مصنف نے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی الفاظ کے بہترین چناؤ کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے بڑی فکر مندی کی، اور ہمیں مکی دور کے اندر بھی بالخصوص اور مدنی دور میں بھی ہمیں شروع میں جو افراد کھڑے تھے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ آپ کے ہم عمر تھے، لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں پوری لائن ہے صحابہ کرام کی جو نوجوان تھے، نو عمر تھے، اور ہم اسی چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ آج اپنی ٹاپک کا حصہ بنائیں گے، گفتگو کا حصہ بنائیں گے، اور ہم اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نوجوانوں کی تربیت، دوستی، مزاج شناسی، قیادت کی تیاری، پھر ان تربیت یافتہ افراد کا تاریخ اسلامی کردار، ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا دیکھنے کی اور سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاری ساتھیوں، یہ چیز کو بھی تھوڑا سا شروع میں ہی ہم دیکھ لیں، جان لیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی فلاسفر تھے کہ محض چند اونچی اونچی اور گہری گہری باتیں کر دیتے، نہ ہی آپ کوئی عام سے وائز تھے، وائز سمجھتی ہے نا، واز دینے والے، درس کرنے والے،
تو نہ ہی آپ کوئی عام سے واعظ تھے کہ معاشرے کے مسائل سے آنکھیں بند کر کے صرف فرد کو مخاطب کرتے اور ٹھنڈے میٹھے واز سناتے اور تقریریں کرتے اور بعض اوقات نتائج پر سرے سے سوچتے بھی نہیں اور بس اپنا کام کرتے چلے جاتے۔ انسانیت کے محسن سراج منیرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سوسائٹی کے مسائل اور طریقہ کار کو پورے شعور کے ساتھ سوچا، تبھی تو وہ 23 سال کا انقلاب آیا تھا، 23 ایئرس لگے، اور یہ بہت تھوڑا وقت ہے ورنہ تو صدی لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کے مسائل کو دیکھا اور اس سوسائٹی کے اندر کے جو طریقہ کار ہیں اس کو بہت ہی شعور کے ساتھ سمجھا اور پوری سوسائٹی میں سے ان قوتوں اور عناصر کو پہچانا جو لوگوں میں مشہور تھے، جو لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے تھے، جو باصلاحیت تھے، جو طاقتور بھی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نوجوانوں پر تھی، جن کے پاس زندگی تھی، ہے نا۔ نوجوانوں کے پاس کتنی زندگی ہوتی ہے، امنگ ہوتی ہے، ترنگ ہوتی ہے، جذبے ہوتے ہیں، صلاحیت ہوتی ہے، کچھ کر جانے کا جذبہ ہوتا ہے، اور ان نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے سے جانا جو اس وقت کی سوسائٹی کی ضرورت تھی۔ اور یاد رکھیے گا، نوجوان ہر دور کی سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس دور میں جو نوجوان تھے نا، وہ ان کی جو امنگ تھی، ترنگ تھی، جو صلاحیت تھی، کیونکہ بالکل صحیح بات ہے، نوجوان امید ہوتے ہیں، ہمارے امید ہوتی ہیں یہ، تو آج بھی نوجوان ظاہر ہے ہماری ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی سوسائٹی میں جن نوجوانوں کو دیکھا، ان میں ظاہر نمایاں متحرک لوگ بھی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں سے رابطہ کیا، دوستی کی، ملاقاتیں کی، دعوت پر بلایا، خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان نوجوانوں کی بالکل سطح اور ضرورت پر اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کام کیا۔ پھر اپنے کردار کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بپھرے نوجوانوں کی تربیت کی، اچھا ان کو چیلنج دیا۔ اچھا ان نوجوانوں کو آپ دیکھیں گی جب آپ خود بھی سیرہ پڑھیں گی، اب چونکہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا نا، تو مجھے امید ہے کہ جب آپ سیرت النبی جب بھی پڑھیں گی نا، تو جہاں کہیں نوجوانوں کا ذکر آئے گا آپ بالکل الرٹ ہو جائیں گی، آپ خود چونکیں گی کہ ارے ہاں اس ٹاپک کو پڑھا تھا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو آپ خود بھی دیکھیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے ان کے اوپر تنقید بھی کی، اور بہت ہی خوبصورت تنقید، اور ان کو چیلنج بھی دیا، اور ان پر اس طریقے سے آپ نے کام کیا، نوجوانوں سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے، آئندہ کی کیا تیاری ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی نے انتہائی گہری بصیرت کے ساتھ سب چیز کا جائزہ لیا، کیونکہ مکی دور کے اندر تو بالخصوص میں کہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی فوکس کام کیا ہے، بہت فوکس کام کیا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اپنی سیاسی شعور کے ساتھ آنکھ بھی کھلی رکھی، اور ابھی ہم پچھلے جو 9 خلافے ہم دیکھ رہے تھے، خاص طور سے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہری بصیرت سے کام لیا، بڑی گہری بصیرت سے۔ اور وہ نوجوان ابو جندل جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زنجیروں سے جکڑے آ رہے ہیں، یا پھر اس وقت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے ساتھ جو صحابہ 1400 صحابہ کرام تھے، ان میں زیادہ تر نوجوان تھے۔ پھر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فکر مندی کا احساس ہے نا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہری اور سیاسی شعور کے ساتھ آنکھ کھلی رکھی۔ اچھا، سوسائٹی کے نوجوانوں پر بھی نظر رکھی، توجہ دی، دعویٰ کیا، کام کیا، کہاں کہاں کس طرح کام لینا ہے، اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص نوجوانوں کے لیے بڑا فوکس رکھا۔ اچھا، مخالفین کے پروپیگنڈے کا پورا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کا جواب شعر سے اور خطاب کا جواب خطاب سے دیا۔ خطاب سمجھتی ہے نا، تقریر کرنا، تو خطاب کا جواب بھی خطاب سے دیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں میں سے شعرا اور خطیب اللہ کے نبی نے کھڑے کیے۔ یہ بہت ہی مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ جتنے بھی شعرا اور خطیب تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو عربی زبان میں شاداب کہتے ہیں، جس کے معنی جو اچھی اردو کے اندر ہمیں نظر آئے وہ یہ کہ اولو الازمی،
तकद्दुम व तेजी, है ना, हर काम में तेजी देना, स्मार्ट पर्सन, गर्मजोशी बहुत होती है नौजवानों में, तो शादाब के मायने ही यही है। नूर बसीरत उनके अंदर बहुत होता है, नौजवानों का विजन, उनकी सोच, उनकी बाहर निकलते हैं, सोसाइटी में मूव करते हैं, सोसाइटी की जरूरत उनके नजर में होती है, वो अपने जैसे लोगों में मिल रहे होते हैं, तो वो ज्यादा गहरी नजर रखते हैं। और फिर समझ बूझ, तो ये चीज नौजवानों को जो अरबी में शादाब कहा जाता है ना, आप देखिए इसके कितने सारे मायने मफहूम निकले। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी उस माशरे में गुजरी है जहाँ बरहना तवाफ होता था, शराब आम थी, जिना आम थी, बल्कि कसरत थी इन चीजों की। और हम जब इस सोसाइटी में ना, तो हम कहते हैं ना कि शबाब, हाँ, शबाब भी कहा जाता है। और एक जगह मैंने पढ़ा था, मुझे खुद भी बहुत ही हैरत हुई थी, शादाब भी लिखा हुआ था, लेकिन बिल्कुल शबाब कहा जाता नहीं, नौजवानी की उम्र। तो ये जो शबाब की जो उम्र होती है ना, जब हम इस उम्रों को लेकर चल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ना, बहुत दफा हम ये बात कह रहे होते हैं कि सोसाइटी ऐसी है, हम क्या करें, है ना, बाहर बड़ी गंद है। तो मैं देख रही थी, मुझे इतनी हैरानगी भी, बल्कि मौक़िफ़ इंसानियत के बिल्कुल शुरू में ही जो टॉपिक है, मैं आपके सामने आज टॉपिक भी रखा हुआ है, मेरे पास पेज 124 है, मुझे अंदाजा नहीं आपके पास क्या पेज होगा। बहरहाल वो नौजवान करके ना एक टॉपिक है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, अभी बस लिख लीजिए, बाद में आप इसको पढ़िएगा। तो ये उस टॉपिक को जब मैंने पढ़ा तो उसमें बिल्कुल साफ और क्लियर मुझे नजर आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी उस माशरे में गुजरी जहाँ बरहना तवाफ होता था, शराब आम थी, बल्कि कसरत, जिना, सब कुछ था। मैं और आप जो सोसाइटी में है वो भी सारे कुछ इसी तरह की है। इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग पर लब्बैक कहने वाले या ज्यादातर साबिकुन अव्वलून में कौन लोग थे? वो नौजवान थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने इन्हें कायद और रहनुमा बना दिया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी रोल मॉडल है। दावत दीन के काम के लिए अफराद की तैयारी, याद रखिएगा साथियों, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दावत दीन के काम के लिए अफराद की तैयारी और टीम वर्क तो हुआ ही हुआ, लेकिन खास बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों में फोकस काम किया, उन नौजवानों के अंदर इंतखाब किया। क्यों? इसलिए कि दावत दीन का काम अकेले नहीं हो सकता था, इसके लिए लाजमन टीम चाहिए थी। और वो टीम जो मैंने अभी आपके सामने रखा ना कि शबाब के जो मायने होते थे, उलुल अज़मी और गर्मजोशी और स्मार्टनेस और समझ बूझ, ये चीज की अल्लाह ताला इन चीजों को पसंद करता है दीन की राह में, कि हम इन कामों के अंदर स्मार्ट नजर आए, हमारा काम फोकस हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से अपनी टीम को तैयार किया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तैयारी के लिए उस दौर के सारे वसाइल इस्तेमाल किए। साथियों, इस लफ्ज को याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक टॉपिक ना अभी आपकी इसी सेमेस्टर के अंदर जो अभी हमारे पास 15 टॉपिक्स है ना, तो उनमें एक टॉपिक ना मैंने रखा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी टेक्निक, जो मैं ये लफ्ज कह रही हूँ ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के सारे जराए और वसाइल इस्तेमाल किए, गोया कि जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं, इस दौर के भी जो जराए वसाइल है उसे हमें इस्तेमाल करना होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो क्या टेक्निक थी कि आपने इन अफराद को तैयार किया। इंशाअल्लाह ताला इस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर रही हूँ मैं, तो इस टॉपिक को भी इंशाअल्लाह हम अल्लाह मदद करेगा तो हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। लेकिन बहरहाल एक खास बात जो आप देखेंगी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नौजवानों की तैयारी में आपको नजर आएगी, वो है फिक्री तैयारी। इसको लिखिएगा, कभी सोचिएगा कि फिक्री तैयारी क्या होती है। हमारी फिक्रें कहाँ कहाँ इधर उधर चली जाती हैं। तो फिक्री तैयारी से इंसान का ना विजन क्लियर होता है। फिक्री तैयारी से अफराद ठोस बुनियाद पर, या आइडियोलॉजी जो होती है ना, उस पर ठोस बुनियाद पर तैयार होते हैं, अंदर तक बात उतरती है। नजरिए की जो आइडियोलॉजी है ना, उसकी जो पुख्तगी ने सहाबा कराम व सहाबियात को उठा खड़ा किया। आपने देखा होगा ना, अक्सर आप पढ़ती हैं कि दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर जाता है तो उम्र की खैर नहीं। इस फिक्र ने अफराद को इस्तकामत, ईमान और यकीन दिया। इसी फिक्र ने सहाबा कराम को तैयार किया, इसी फिक्र ने उस दौर के नौजवानों को तैयार किया। और यही जो नजरिए की फिक्र होती है ना, ये आज के नौजवानों को भी खड़ा रखती है। जो एहसास जवाबदेही होता है कि इस उम्र के बारे में अल्लाह को जवाब देना है।
फिक्री तैयारी ने आप देखिए आज भी इस सदी में भी आप देखिए सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को तैयार किया। मैं इतनी हैरान होती हूँ अगर मैं अपने 17 साल के बच्चे को जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब तैयार किया था ना 17 साल की उम्र में जहाद इस्लाम, तो मैं अगर ये किताब अपने बच्चों को भी पढ़ने दे दूं ना तो उनके सर से गुजर जाएगी। इसको पढ़ने के लिए उन्हें बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक नौजवान होता है 17 साल की उम्र में वो ये किताब लिख लेता है। ये जो मैं आपसे कह रही हूँ ना फिक्री तैयारी या नजरिया, ये चीज होती है विजन, वो इंसान को तैयार करती है। और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा नुमाया नजर आती है। फिर हम देखते हैं नौजवान ही थे जब खुर्रम मुराद साहब ने अपना काम शुरू किया, वो फिक्री तरबियत इतनी उतरी, मैं इतनी हैरान हुई थी कि उनका सेकंड या थर्ड ओपन हार्ट सर्जरी थी और वो रात को बैठ के तर्जुमानुल कुरान का शुरू का जो वो कॉलम क्या कहते हैं उसे वो लिख रहे हैं। 6 महीने का लिख कर रख रहे हैं कि भाई तबीयत कब संभलेगी, ऐसा ना हो कि वो रिसाला रुक जाए। ये जो लगन होती है ना, ये लगन अफराद को तैयार करती है, यही लगन होती है जो अफराद को आगे लेकर बढ़ती है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि जिम्मेदारी का काम अक्सर नौजवानों ही के सुपुर्द किया जाता था। इसकी बहुत सारी मिसालें हमें सीरा के अंदर मिलेंगी। चुनांचे आप देखेंगी कि किसी कबीले ने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़हीन नौजवान को इसका सरदार मुकर्रर कर दिया। और उस वक्त असल म्यार क्या था? उस वक्त म्यार क्या था? इस्लामी असूल और शरीयत से कौन ज्यादा वाकिफ है, ये म्यार था। नमाज पढ़ाने के लिए कुरान की सूरतें सबसे ज्यादा किसको याद है, कौन अपने दीन के बारे में जोश और जज्बा रखता है, और ये सारी खुसूसियात नौजवानों में पाई जाती थी। अमूमन नौजवान मदीने आकर तेज रफ्तारी के साथ जितना भी उस वक्त का कुरान नाजिल हुआ था उसकी सूरतें वो हिफ्ज कर लिया करते थे, जल्दी से बातों को पिक कर लेते थे। दीगर अमूर मसलन माल दौलत खूबसूरती तजुर्बेकारी जो थी सरदारी के लिए उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ज्यादा पेश नजर नहीं थी कि कौन ज्यादा माल दौलत रखता है, कौन ज्यादा तजुर्बा रखता है, बल्कि आपके पेश नजर क्या चीज थी वो मैंने अभी आपके सामने बात रखा कि कौन असूलों को जल्दी समझ लेता है, कौन नमाज पढ़ाने के लिए कुरान की ज्यादा उसको सूरतें याद हैं, कौन दीन के लिए जोश और जज्बा रखता है। तो वो चीज फिर नौजवानों में नजर आती थी। एक साहबी के बारे में पढ़ रही थी, अल्लाह करे कि मैं सही नाम ले रही हूँ, सुलैमा अजरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि जब मैं अपने कबीले वालों के साथ मुसलमान हुआ तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे कुरानी सूरतें ज्यादा याद हो गई थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कबीले का इमाम मुकर्रर कर दिया था। एक बहुत ही छोटी सी, आप देखिए इनका हाल देखिए कि इनके पास जो मैंने बात रखा ना कि मालो दौलत और खूबसूरती और तजुर्बेकारी, आप देखिए ये जो सहाबी थे जो अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे चूंकि कुरान की ज्यादा सूरतें याद थी, जाहिर कितने स्मार्ट होंगे ना। अभी भी जो बच्चे हिफ्ज कर रहे होते हैं कितने उनके बारे में हैरान होते कि अरे 9 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में 30 पारा हिफ्ज कर लिया, यकीनी तौर से दिमाग बहुत तेज हो गया होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह देख रहे होंगे ना। तो वो कहते हैं कि मुझे प्यारे नबी ने अपने कबीले का इमाम मुकर्रर कर दिया और मेरे पास हाल क्या था कि बहुत ही छोटी सी तहमत थी जो नाक से लेके घुटनों तक ही जाती थी और उसके अलावा मेरे पास कोई कपड़ा ही नहीं था। एक दफा नमाज के लिए गया तो जाहिर है कुछ बेपर्दगी सी होती होगी ना, तो फिर उन नमाजियों में खातून ने खड़े होकर मर्दों को तवज्जो दिलाई कि भाई आप लोग उसको पूरा कपड़ा तो खरीद कर दें। तो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के सामने एक सहन बना दिया था जिस पर सायबान भी नहीं था, कोई ऊपर साया भी नहीं था, ऐसा था वो सहन। सहन समझती है ना किसे कहते हैं सहन? है साथियों, सहन किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा जुमला उर्दू का मैंने बोला है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो सहन जो था ना, जो वो जगह जो थी, आपने जो एक छोटा सा हिस्सा होता है ना घर के, कभी पीछे कभी आगे बना हुआ होता है, या हम बैकयार्ड या उस तरह की बात कह रहे होते हैं ना, तो उसे उस दौर के अंदर क्या कहा जाता था आपके लिए कोई से बताइए? वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के सामने एक सहन बनाया था, हाँ घर के आगे का ओपन एरिया होता था, बरामदा या कुछ भी आप कह लें, सोफा, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आप इस क्विज में जीत गई है माशाल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो एक छोटा सा सहन बनाया था ना, उसका नाम सुफ़ा था। दिन को ये मदरसा या जामे बन जाता, यूनिवर्सिटी बन जाती थी, और रात के वक्त वो बोर्डिंग हाउस। और इस बोर्डिंग के मौलिम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन इब्तदाई तालीम और लिखना पढ़ना सिखाना ये काम ज्यादातर आपने नौजवानों के सुपुर्द किया था। मुझे इतनी हैरत हुई है सुनकर, पढ़कर।
अच्छा, ये वो नौजवान थे जो रजाकाराना ये खिदमत अंजाम देते थे। आप देखिए जंग बदर में जब कुफार पढ़े लिखे कैदी का फिदिया 10 मुसलमानों को पढ़ाना तय हुआ, तो जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे बड़े जबरदस्त बड़े स्मार्ट ये साहबा थे, और उन्होंने इस तरह ही जो 10-10 मुसलमानों को जो पढ़ाने का उनका जो कफारा तय हुआ था ना, तो ये हजरत जैद बिन साबित उन नौजवानों में से थे जिन्होंने बैठकर वहां पे पढ़ा था। ये नौजवान साहबी की जहानत का अंदाजा इस तरह कीजिए कि उनको उस वक्त की जो फारसी जबान थी, जो हबशी जबान थी, जो यूनानी जबान थी, जो इब्रानी जबान थी, वो उन्होंने मदीने में जो लोग इस्लाम के लिए आते जाते थे, तो वो अपने शौक से उन लोगों के पास बैठ बैठ कर उन्होंने इन जबानों को मुसाफिरों से चंद दिनों में ही सीख लिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यहूदियों से खतो किताबत करने के लिए क्या कहते हैं इब्रानी जबान सीखने के लिए कहा ना, तो उन्होंने 15 दिन के अंदर ये जबान सीख ली थी, इसलिए कि वो पहले ही लोगों के दरमियान बैठ बैठ के अपने शौक में जबान सीख लेते थे। जो मैं कह रही हूँ ना, नौजवानी की उम्र बड़ी टैलेंट की उम्र होती है। अच्छा, उन्होंने जो जबान सीख ली, तो उससे इस्लामी अमूर खारजा जो थी ना, फॉरेन मिनिस्ट्री खुद ब खुद कफील हो गई, और इस काम के लिए किसी यहूदी की जरूरत नहीं रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से बातचीत करने के लिए किसी यहूदी से किताबत करें, बल्कि हजरत जैद बिन साबित ने जो थे उन्होंने वो इब्रानी जबान सीख ली थी, और ये मसला खुद ब खुद हल हो गया था। और इस तरह जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह दीगर जो कातिबे वही थे, वो भी नौ उम्र थे, जिनमें हजरत अली, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह का नाम आता है। ये बड़े जबरदस्त नौजवान थे जो आपके जेरे तरबियत थे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं देखती हूँ साथियों कि इब्ने मसूद वगैरह जैसे जो वो नौजवान थे ना, जो बढ़कर अहम और जिम्मेदारियों के काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया था, और जो इस तरह के टैलेंटेड नौजवान होते थे ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे काम उन नौजवानों के सुपुर्द करते थे। हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 फौज का सिपाहीसालार मुकर्रर किया था, लेकिन बड़े कम से 17-18 साल की उम्र में। फिर जंग खैबर में आपने पढ़ लिया, देख लिया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र बमुश्किल 25 साल की होगी, उन्हें एक बहुत बड़े मार्के का अफसर बना दिया गया था। इसके बाद के सालों में इन्हें गवर्नर और काजी जैसे ओहदे भी दिए गए, और यही हजरत अली थे ना, कितनी छोटी सी उम्र थी जब मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा के सामने दावत दी थी। किसी को पता है हजरत अली की क्या उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा के पहाड़ पे जो पहली दावत दी थी, खुल के सबको बुलाया था? बिल्कुल, यही बिल्कुल सही लिख रही है। मैंने खुद भी मुख्तलिफ किताबों में 9 से 11 साल तक की उम्र देखी। किसी किताब ने 9 को कहा है, किसी ने 10, किसी ने 11 साल। लेकिन 9, 10, 11 उम्र क्या होती है? आप देखिए खड़े होके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये वो नौजवान थे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही थी कि हजरत अमर बिन हजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बहुत ही नौ उम्र साहबा थे। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूबों की मतलब गवर्नर जिसे हम कहेंगे उस वक्त के गवर्नर और इंस्पेक्टर मुकर्रर किया था, बल्कि मुआज बिन जबल जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। वो ज्यादातर तालीम के लिए मुकर्रर किए जाते थे मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां लोग ईमान लाते थे। और हजरत मुआज के मुतल्लिक मौरख ये भी लिखते हैं कि इनका काम ये था कि गांव गांव और जिले जिले जाकर दौरा करते, वहां तालीम की यानी एजुकेशन की निगरानी करते और बंदोबस्त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती सलाहियतें देखकर मुख्तलिफ नौजवानों को काम जो है ना वो अपॉइंट किए थे। और इसमें हम देखते हैं ना, अच्छा मैंने आपके सामने रखा था ना हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि उन्होंने इब्रानी जबान सीखी थी। इसके साथ साथ मेरे लिए इतनी हैरत की बात थी कि हिसाब किताब के यानी मैथ्स के भी वो बहुत माहिर थे। इसलिए इन्हें तक़सीम तरका के जो सारा जो मसला था ना, उस इल्म का उनको इमाम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और किसी को वो फन तजवीद जो होती है, तजवीद के कोई माहिर थे, कोई क़िराअत के माहिर थे, किसी को आम मसले मसाइल, किसी को फ़िक़्ह का इल्म था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुख्तलिफ जगहों पे भेजते थे और लोग उनसे मालूमात हासिल किया करते थे। अच्छा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खास मुशीर थे, जो बिल्कुल खास लोग थे, उनमें अक्सर नौजवानी थे। जो कि मैंने बताया कि सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन हम उम्र थे, है ना, बाकी तमाम अकाबिर सहाबा
जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत इब्न जरा जो थे, सब हिजरत के वक्त नौ उमर थे। हजरत इब्न उमर, हजरत इब्न अब्बास, हजरत जैद बिन साबित, तो जिनके बारे में तारीख के अंदर आता है कि वो बहुत ही बच्चे थे, बिल्कुल हजरत बिलाल समेत बहुत सारे थे। मैं आपको कह रही हूँ कि मक्की दौर के शुरू के जो सहाबा थे ना, आप सुबहान अल्लाह आप देखेंगी तो पेशतर नौजवान थे, और एक नामों की पूरी फहरिस्त आपको मिलेगी कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मतलब उनके ऊपर बहुत ही खासुल खास काम किया था। और ये वो लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम कुरान और हर अमूर में ना उनसे मशवरा करते थे। ये तरबियत का अंदाज होता है, मशवरा करने से जहन खुलता है, और ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर तरबियत ही थी। अच्छा, वो वाकयात और चीजें अल्लाह के नबी उनके सामने इस तरह पेश करते थे कि अब इसका सोल्यूशन दो, इसको हल करो, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को वो आखिरी फैसला मानते और फिर उनको सुनते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामों की तकसीम फरमाते। तो इस तरह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बल्कि एक रवायत भी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी शख्स को अपने साथियों से मशवरा करते नहीं देखा। ज़ाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर ये चीज थी कि नौजवान तैयार हो, तो अल्लाह के नबी ने उसी तरीके से काम किया था। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, जर्ब है कारी। सुभान अल्लाह। प्यारी और अजीज साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 15 से 25 साल की उम्र को नौजवान कहा जाता है। इसमें बचपन और लड़कपन भी शामिल है। और अगर हम इसकी कुल देखेंगे ना आबादी की पॉपुलेशन की, तो हमें कहीं पे मैंने देखा कि 50% नौजवान है, क्योंकि 25 साल से कम उम्र जो नौजवान हैं उन 42% भी है, और कहीं 50% भी लिखा हुआ था। किसी भी मुल्क की तरक्की कामयाबी में नौजवानों का बड़ा अहम किरदार होता है। हर रेवोल्यूशन के पीछे, चाहे वो सियासी हो, माशी हो, साइंस का मैदान हो, गर्ज हर जगह नौजवान आज भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और उस दौर में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं ना, इनकलाब की असल जो रेवोल्यूशन की असल जो रूह थी, रूह रवां थे, वो नौजवान थे। उनकी तकरीरें, उनकी बातें, उनका काम, उनका एक्टिव होना। अच्छा, आज के दौर में भी मैं देख रही थी, जब मैं थोड़ा मुताला कर रही थी कि रूस का इनकलाब हो या फ्रांस का या मार्टिन लूथर किंग का बर्पा करदा रेवोल्यूशन हो, सबके पीछे में नौजवान खड़े नजर आते हैं। इसलिए नौजवान सोसाइटी का हम कहते हैं ना कि बहुत पावरफुल हिस्सा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नौजवान, हमने देखा कि नौजवान नाम है कुव्वतों, सलाहियतों, हौसलों, उमंगों, बुलंद हिम्मत और जहानत का, है ना, ये दूसरा नाम ही नौजवान है। और किसी भी कौम की तरक्की और कामयाबी में नौजवानों का किरदार बहुत अहम होता है। हर इनकलाब, चाहे वो सियासी हो, शऊरी हो साथियों, इसमें नौजवानों का बड़ा किरदार होता है, और हर मैदान में नौजवानों का अहम किरदार है। इसीलिए इनको सोसाइटी का पावरफुल हिस्सा कहा भी जाता है। प्यारे साथियों, क़यादत किसे कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान क़यादत तैयार की, नौजवानों पर काम किया। आपने इस मामले में बहुत ज्यादा इस चीज को अहमियत दी। तो फिर आइए देखते हैं कि क़यादत कहते किसे। क़यादत उस सलाहियत और किरदार का नाम है जिसके जरिए से आप लोगों को मुश्तरका मकासद, यानी कोई भी मकासद होता है, एक मकासद बनाकर उसके हुसूल के लिए अपने साथ लेकर चल सके, है ना। और इसके लिए फिर आपको मुतहरिक अफराद की जरूरत होती है। आज भी हम कह रहे होते हैं ना कि जो नौजवान है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो छोटी बच्चों की माएँ आती हैं, बैठती हैं, पढ़ती हैं, सुनती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यही वक्त की असल जरूरत थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का भी पूरा एहतमाम रखा था कि नमाज में अगर बच्चों की रोने की भी आवाज आती तो अल्लाह के नबी नमाज मुख्तसर कर देते थे, लेकिन उनको उस तरबियती अमल से गुजारा। और एक चीज और भी है साथियों, क़यादत मनसब नहीं है, किरदार है। चाहे वो किसी भी उम्र में मिले, मुझे और आपको किसी भी उम्र में मिले, ये इसके लिए उम्र की कोई शर्त नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त, उस दौर में ये बात समझाई थी कि क़यादत मनसब नहीं है बल्कि किरदार है। अभी आपके सामने एक सहाबी की मैंने मिसाल रखी थी ना
کہ ان کے پاس اتنا بھی پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، صرف ناک سے لے کے گھٹنے تک کا ہی حصہ وہ چھپا سکتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا چیز دیکھی تھی کہ ان کو وہاں کا امام اور قائد بنا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ نوجوان قیادت نے رہنمائی اور نشاندہی کی کہ کس سمت میں جانا ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ، کس سمت میں جانا ہے، کس رفتار سے جانا ہے اور کس تیاری سے جانا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کہتی ہوں نا کہ فوکس کا، تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیشہ کام کو بڑا سوچ سمجھ کر کیا کہ کہاں کس سمت میں جانا ہے بھائی، کہاں تک کا یہ ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے، اس ٹارگٹ کے لیے میری اور آپ کی اسپیڈ کیا ہوگی. بعض اوقات کوئی مہم ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سا کام ہوتا ہے نا، کوئی چیز کی اطلاع دینی ہوتی ہے. اب اس کا تو بھائی اس کی تو اسپیڈ جو ہے وہ چیز ایک ہفتے میں کرنا ہے. اس کی اسپیڈ تو ظاہر ہے 20 اور 30 تو نہیں ہو سکتی، اس کی اسپیڈ تو پھر 50 ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ایک ہفتہ ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام کا جو وہ ہے حجم ہے وہ بہت بڑا ہے، ہمیں بہت جلدی کام کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرہ کے اندر دیکھیں گے، اور آپ اب تک ماشاءاللہ 10ویں اس پہ آ چکی ہے کلاس میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جتنی بھی کلاسوں کے اندر جو بھی ٹاپک کو دیکھا، پڑھا، سمجھا، اس میں ہمیں نظر آئے کہ اللہ کے نبی اپنی اسپیڈ طے کر لیتے تھے. آپ دیکھیے گلے محلوں کی اسپیڈ دوسری ہوتی ہے، ہائی وے کی اسپیڈ دوسری ہوتی ہے. اس اسپیڈ سے ہائی وے میں نہیں چلا جا سکتا، ورنہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں لفظ کہتی ہوں نا کہ آپ نے بڑا فوکس کام کیا ہے، تو اس فوکس کام کے اندر یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ آپ اپنی منزل تو طے کر لیتے تھے کہ بھائی جانا کہاں ہے، کس رفتار سے جانا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ طے کر لیتے تھے، اور پھر کس تیاری کے ساتھ جانا ہے. تو یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی. تو یہ لفظ آپ کو سیرہ کے اندر بہت امپورٹنٹ نظر آئے گا. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا تھا نا اس کے ساتھ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی تشریح کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے. ہم ظاہر سیرہ کو دیکھتے ہیں، ہم احادیث کا حوالہ لیتے ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو میں ایسے دیکھ رہی تھی کہ قرآن میں نوجوانوں کا تو ذکر ہے نا، اصحاب کہف یہ بھی تو نوجوان ہی تھے. سورۃ کہف کی روشنی میں نوجوانوں کا کردار بیان ہوتا ہے. یہ وہ نوجوان تھے جن کو قرآن فتیۃ کہتا ہے، بالکل ٹین ایج کی عمر. یہ عمر بڑی جذباتی ہوتی ہے، لیکن اگر جذبات کو صحیح رخ مل جائے تو وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا اعلان کر دیتے ہیں. ان نوجوانوں نے وہ کام کیا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ رول ماڈل بن گئے. ہم کتنے خوشی خوشی جا کر ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے نوجوانوں سے، ہے نا. کوئی ویسے اصحاب کہف جس جگہ پر ہے کوئی گئی ہے بہن؟ دو روایت ہے اس کے اندر، ایک روایت تو یہ کہ جارڈن میں، اور ایک روایت یہ کہ یہ ٹرکی میں، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جارڈن میں. کوئی بہن آپ میں سے گئی ہے، دیکھا ہے کسی نے اس مقام تک؟ ہو سکتا ہے کہ گئی ہو. اس کو تھوڑا سا نیٹ پہ نہیں، اس کو نا تھوڑا سا نیٹ پہ کبھی بیٹھ کے دیکھیے گا اس جگہ کو، آپ کو ایسی محبت آئے گی، ایسی محبت آئے گی. تو آپ دیکھیے یہ وہ ٹین ایج لوگ تھے، یہ وہ نوعمر لوگ تھے جن کو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر ان کی مطلب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کی حفاظت کر رہا ہے، کروٹیں دلا رہا ہے نا، بیڈ سول سے بچا رہا ہے، سورج بھی گزر رہا ہے اس طریقے سے کہ پوری روشنی نہیں آ رہی. تو قرآن ان نوجوانوں کو ڈسکس کرتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی کم سنی نوجوانی میں آزمائش، اور ایسی آزمائش آئی کہ عظمت کے مینار ہی بن گئے، ہے نا. نوجوانی کا سب سے مشہور واقعہ تو ہمیں قرآن کے اندر انہی کا ملتا ہے. اور پھر یہ قصہ ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتا ہے جو خاندانی سیاست، حسد، بگڑے ہوئے ماحول میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ معاشرہ جو بہائی کو ایکسپٹ کر چکا ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر یہ نوجوان کس طریقے سے اپنی حیات کی حفاظت کرتے ہیں نا، یہ بھی نظر آتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب دیکھیے نوجوانی میں ہی بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے یہ بھی ان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ قرآن میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کا بھی قرآن کس طریقے سے ذکر کرتا ہے. غالباً سورہ یونس کی آیت 83 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بار بار جھٹلایا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، لیکن وہ چند نوجوان ہی تھے جنہوں نے کٹن حالات سے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے اور ساتھ دیا. اور یہ ساری چیزیں
चाहे साबिक़ कहफ का वाक़या हो, चाहे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, चाहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, हम देखते हैं कि सारे वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की दौर में बताए जा रहे हैं, जबकि आपके सामने नौजवान नस्ल खड़ी थी। फिर हम सैयदा मरियम के बारे में पढ़ते हैं ना, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कि कमसीनी में आजमाई गई और क़यामत तक के लिए नौजवान लड़कियों के लिए हया के हवाले से रोशन मिसाल कायम कर गई है। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो हमें नजर आ रहा होता है कि कुरान ने जिन नौजवानों का जिक्र किया ये उस दौर के वक्त की चीजें थी, जबकि हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नौजवान लोग मौजूद थे। बल्कि कुरान की जो कुरान जो वो आयत रखता है ना सूरह फुरकान के अंदर है ना, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो जरूर सोचिएगा अगर आखिर में बकरात हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे कि ये जो कुरान की आयत है इसको सीरा की रोशनी में हम कैसे देखते हैं, वरना ऐन मुमकिन है कि आप इस पूरे अभी जो हमारी ये क्लास है से गुजरते गुजरते आप खुद भी पहुंच जाए कि कुरान जो असल में आप देता है ना, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, के मुत्तकीन का इमाम बना, तो वो क्या चीज होती है। अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों की इसी लिहाज से तरबियत भी कर सकें। प्यारे साथियों, कुरान में नौजवानों का जिक्र फिर हम हदीस में भी देख रहे होते हैं ना कि हमें बहुत सारी हदीस से इस नौजवानी की उम्र के काम की कदर अफजाई मिलती है। नौजवानी ज़ाहिर एक अजीम नेमत है। क़यामत के दिन उस नौजवानी के बारे में खुसूसी सवाल किया जाएगा। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी क़यामत के दिन इंसान के कदम अपनी जगह से हट ना सकेंगे यहाँ तक कि इससे 5 बातों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। वो क्या थी 5 बातें? उम्र किन कामों में गंवाई, यानी वो सब कोई भी उम्र हो सकती है ना, XYZ कोई भी उम्र है। और फिर क्या था अगला सवाल, जवानी की तवानाई कहाँ सर्व की। ये वो चीजें थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तरबियत में, क़यादत के चुनाव में, आइंदा की तैयारी में, उम्मत को एक विजन देने में ना ये चीज सामने रखी कि वो जो नौजवानी की उम्र की जो तवानाई होती है ना, और ये तवानाई बहरहाल कहाँ लग रही है, यही असल चीज है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि 7 किस्म के आदमी को अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में रखेगा जिस दिन इसके सिवा और कोई साया ना होगा। तो वो 7 लोग थे ना, उनमें एक तो इंसाफ करने वाला हाकिम, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत से गुजरी। मैंने सिर्फ इस चीज को यहाँ पे अभी फोकस किया है, वरना वो 7 लोग पूरी एक हदीस है तवील, और सही बुखारी से ये हदीस है। लेकिन आप देखिए कि हदीस की रोशनी में वो नौजवान जिसने जवानी अल्लाह की इबादत में, इबादत सिर्फ नमाज रोजा ज़कात नहीं है ना, ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं। अब्द, बंदगी, गुलामी, जिंदगी के हर मामले में कोई सोच, कोई फिक्र, कोई फैसला, ये अगर सिर्फ नमाज रोजा ज़कात पे हम रखेंगे ना तो ये हदीस बहुत छोटी हो जाएगी। इसका बहुत ही विजन बड़ा है इसका। फिर 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, उनमें भी आप देखिए सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या है, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। तो साथियों ये वो हमें उन चीजों से वो बात समझ में आ रही होती है। इसीलिए आज मेरा बहुत दिल चाहा कि हम नौजवानी की इस चीज को ना अपने आज का एक मौजू बना के इस पे बहुत अच्छी सी डिस्कशन करें। और मुझे तो हमेशा अभी अल्लामा इकबाल का ये शेर भी बहुत ही हमेशा से अच्छा लगता है कि कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या बुड्ढों से जिसका टूटा हुआ तारा। तो वाकई ये चीज बहुत अहम है। अल्लाह ताला इन चीजों के बारे में वाकई हमें वो समझ बूझ भी अता फरमाए। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, और मैंने आपको टॉपिक बताया ना महफिल इंसानियत में से वो जो टॉपिक है वो नौजवान। अब मैं इसका पेज नंबर नहीं बता रही हूँ, लेकिन गालिबन ये मक्की दौर का ना जो उसमें आप देखिएगा मक्की दौर का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है नौजवान ना। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो विजन दिया था ना वो यही था कि बस वो एक कलमा है, इसे अगर कबूल करके मेरे साथ आओ तो तुम उसके बल पर सारे अरब को हाथ में ले लोगे और इसके असर से अजम तुम्हारे डेरे नहीं होंगे। तो उसके अंदर भी जो टॉपिक है वो नौजवान, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नौजवानी की जो तस्वीर कशी है ना वो बड़ी जबरदस्त है उसके अंदर। तो कुरान ने नौजवानों का जिक्र किया इसलिए कि उस दौर के अंदर अल्लाह के नबी के सामने नौजवान थे। हदीस में नौजवानी के बारे में हदीस आई है ना
सीरा में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का भरपूर किस्सा और वाक़या हमें मिलता है। प्यारी साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी बेदाग और पाकीज़ा थी। अमीन और सादिक का खिताब आपको नौजवानी ही में मिला था। गोया के जो दाई होता है ना, वो इन्हीं चीजों, जब उसका दामन बिल्कुल क्लियर होता है ना, तभी लोग उसकी बात सुनने के लिए राजी होते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानी में बिजनेस किया, तिजारत की थी, है ना, 25 साल की उम्र में आता थी तिजारत की। फिर हजरत असद का वाकया नौजवानी में पेश आया। ये भी शायद 25 से 30 साल की तक ही इस वक्त आपकी उम्र थी कि कितनी आपने होशियारी के साथ एक बड़े झगड़े को निपटा दिया था, वरना तो कितना झगड़ा होता है। इनका झगड़ा तो खून खराबे पे चला जाता था। हल्फुल फजूल का वाकया आपने टीन एज में किया था। पूरे माशरे की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में थी, जो कि नौजवानी में ही मिलती है। प्यारी और अजीज साथियों, इन सब बातों में हमारे लिए क्या सबक है ना? ये मत घबराने की जरूरत नहीं है कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हम क्या करें। इन चीजों में साथियों, जो जहां जिधर है ना, वो वहीं से काम शुरू कर दे। मैं इतनी हैरान हो रही हूँ सीरा पढ़ पढ़ के कि कितने उम्र में जाके कितने साहबा ईमान लेकर आए। किसी को ये चीजें अगर हम सोचेंगे ना, तो शैतान बहुत जल्दी से मुझे और आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा, नाउमीदी की तरफ ले जाएगा कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं साथियों, जहां है, जैसे जिधर है, वहीं से वो काम पिक कर ले। ये चीज हमें कम से कम नाउमीदी से नहीं बचाएगी, है ना? ये भी उम्मत के अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हमारे अगर बच्चे बड़े हो गए, तो जिनके बच्चों के जो बच्चे हैं, या हमारी जो बहन भाई हो या अजीज रिश्तेदार के बच्चे हैं, है ना, वो कोई अच्छा मुफीद मशवरा, बातचीत, अपना तजुर्बा, अपनी मोहब्बतें। बहुत से बात बड़ी उम्र की बहनें होती है, लेकिन इतनी मोहब्बत और दिलसोजी होती है कि बच्चे उनके घरों में जाना पसंद करते हैं। तो साथियों, दुआ कीजिए कि इस दौर में, शायद वो मेरा घर हो, शायद वो आपका घर हो, यहाँ पे बहन बैठी हुई किसी भी बहन का घर हो सकता है, कि अल्लाह ताला इस दौर का मुजद्दिद, इस दौर का स्कॉलर उसके घर से उठा दे, है ना? कोई तो घर होगा आइंदा आने वाली सदी में, कोई तो आलिम, कोई साइंसदान, कोई स्कॉलर हो सकता है। वो मेरे और आपके, वो हमारे ही जैसे घर होंगे ना, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद साथियों ये भी देखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तरबियत, इन तरबियत याफ्ता अफराद का तारीख इस्लाम में किरदार जो कि बहुत अहम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नौजवानों को तैयारी बहुत ही मतलब सादा, फितरी और सलाहियतों के मुताबिक की। इस लफ्ज से ऐसे ही नहीं गुजरिएगा। हमें हमें कुछ समझाने के लिए, चाहे हम नानी दादी बनकर समझाएं, आंटी खाला फूफी बनकर समझाएं, चाहे हम माँ बनकर समझाएं, चाहे हम नेबर बन के समझाएं, चाहे हम एज अ टीचर बच्चों के सामने मौजूद हो, कोई भी जगह हो। मैं देखती हूँ कि जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया जिस चीज ने, वो ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सादा और बहुत ही फितरी अंदाज में ना, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने फिर रखती हूँ कि हम एक टॉपिक जरूर किसी क्लास में आपसे की वो सारी टेक्निक को देखेंगे कि आपने किस टेक्निक पे ये सारा काम किया। लेकिन बहरहाल सीरा के मुताले से ना, ये बात नजर आती है कि सादा, फितरी और सलाहियत के मुताबिक आपने तैयारी की। और आप जब खुद भी सीरा पढ़ेंगी ना, तो आपको ऐसे वाकयात चुन चुन कर आपके सामने फिर आएंगे। बल्कि मुझे तो लगता है कि कोयले के कान से हीरो को तराशना, आपने वो काम किया, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेर तरबियत सैयदना उमर का विजन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेर तरबियत सैयदना हुज़ैफा बिन अल-यमान का विजन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेर तरबियत सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। साथियों, इसमें सिर्फ एक ही वाकया, वक्त का मैं सिर्फ एक ही वाकया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रख सकती हूँ कि एक दफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक मस्जिद में बैठे थे, ठीक है। वहां मौजूद अफराद को अपनी अपनी ख्वाहिश बयान करने के लिए कहा। तो एक शख्स ने अपनी तमन्ना यूं बयान की, एक सहाबी ने अपनी तमन्ना यूं बयान की कि मेरा दिल चाहता है कि ये हवेली दरहमों से लबरेज हो, है ना, बहुत सारे दरहम हो, और वो सब में राह खुदा में इंफाक कर दूं। दूसरे ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये घर सोने से भरा हो, सोने चांदी से भरा हुआ हो, और मैं सारा सोना अल्लाह की राह में सदका कर दूं। तीसरे ने कहा कि मेरी आरजू है कि ये घर जमरुद, ये भी एक पत्थर होता है तो बड़ा कीमती, तो ये घर जमरुद और जवाहरात से भरा हुआ हो, और मैं इन्हें अल्लाह की राह में लुटा दूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कहा कि और कोई अपनी ख्वाहिश, अपनी कोई विश बयान करो, अपनी कोई तमन्नाएं बयान करो। तो जो साहबा कराम बैठे थे, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमारी समझ में और कुछ नहीं आता, हमारी समझ में यही आता है जो हमने आपके सामने रख दिया है। अमीरुल मोमिनीन, आप भी अपनी कोई विश बयान करें, आप भी अपनी ख्वाहिश बयान करें।
तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इस मकान में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा और हजरत हुज़ैफा बिन अल-यमान जैसे लोग रौनक अफरोज वो, और मैं उन सबको अल्लाह की राह में लगा रहा हूँ, उन सबको अल्लाह की राह में आमिल मुकर्रर कर दूँ। प्यारी साथियों, जितने भी साहबा कराम थे उन सब की विश, उन सब की ख्वाहिश बहुत अच्छी थी। जाहिर है ये सब ख्वाहिशें बहुत अच्छी थी, बहुत मुबारक थी कि सोना चांदी जवाहरात हासिल करना चाहते थे, किसी पर्सनल गेम के लिए नहीं, किसी पर्सनल मैटर के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए हासिल करना चाहते थे, इंसानियत की राह में लगाना चाहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तवज्जो, तरबियत की वजह से जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो विजन था, जो उनकी गहरी सोच थी, जो उनका शऊर था ना, उस वजह से उन्होंने उस महफिल में अपनी उस ख्वाहिश का जिक्र किया कि वो नौजवान, मतलब उन्होंने नौजवानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये 3-4 नौजवान मिल जाए, और आप कभी आपको मौका हो तो जरूर आप सीरत सहाबा में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में पढ़िएगा। मैं जॉर्डन में मैं खुद इनके कब्र मुबारक की तरफ गई हूँ, और मैं उस वक्त की आपको कैफियत नहीं बता सकती हूँ कि इंसान को अपना आप, अपना कद बड़ा छोटा लगता है। साथियों, इन 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 अशरा मुबशरा में इनका नाम था। इनके आगे जाके जब इंसान बैठता है ना, तो जरूर सीरा में से इनके बारे में निकालिए और खुद पढ़िए। पहले हमें पहले फिक्र होती है बच्चों को पढ़ा दे, उनको पढ़ा दे, वो नहीं पढ़ते, पहले हम खुद पढ़ें। हजरत मुआज बिन जबल नौजवान, हजरत हुज़ैफा बिन अल-यमान, इतने जबरदस्त इनके किस्से और चीजें हैं। अब देखिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नौजवानों की ख्वाहिश की, उन्होंने ये तमन्ना की, ये विश किया कि मुझे नौजवान मिल जाए जिन्हें वो इस्लाम की खिदमत में लगाना चाहते थे। ये हकीकत है कि इस्लाम की खिदमत में जो सरमाया चाहिए ना, वो ये नौजवान थे, जिन्हें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिदमत या तरक्की के लिए सिंबलाइज किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक ये वो नौजवान थे और हैं जो अपना टैलेंट इस्लाम को देते हैं, अपना तन मन धन इन्होंने इस्लाम के लिए लगाया था। ये वो नौजवान थे जिसकी ख्वाहिश हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की थी, जिन्होंने अपना वक्त, सरमाया, सलाहियत, हत्ता कि अपनी जान भी लगा दी थी। सैयदना उमर फारूक ने ऐसे नौजवानों की ख्वाहिश की, डिमांड किया। ऐसे नौजवान हर दौर में उम्मत का कीमती सरमाया होते हैं, जिनका मुकाबला ना कोई सोना चांदी कर सकता है, ना हीरे जवाहरात, और ना ही कोई कीमती चीज कर सकती है, ना ही कोई प्रोपेगेंडा, ना कोई तूफान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आज भी ये नौजवान तब्दीली की अलामत है। हर आइडियोलॉजी की अहमियत इन्हीं की वजह से। मैं एक फलस्तीनी लीडर के बारे में पढ़ रही थी कि वो अपने इंतकाल के वक्त बड़ी कीमती बात कहकर गए थे कि उन्होंने कहा था, हक और बातिल की पूरी जंग सिर्फ और सिर्फ एक बात पर अटकी हुई। बातिल चाहता है कि हमसे हमारे नौजवान नस्ल छीन ले, और हम अपने नौजवान नस्ल को बचाना चाहते हैं। सारा झगड़ा, सारी लड़ाई सिर्फ एक बात पर अटकी हुई है। अगर वो छीनने में कामयाब हो गए तो खता उनकी, अगर हम बचाने में कामयाब हो गए तो खता हमारी। प्यारी और अजीज साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को क्यों अहमियत दी, आपको इस बात से, इस वाक़े की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नौजवान तैयार किए थे। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी वो नौजवान नस्ल, जो उन्होंने कहा ना उस लीडर ने कि वो अगर छीनने में कामयाब हो गए तो फतह उनकी, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो हमारे नौजवान नस्ल कैसे छीन रहे हैं। आपके जहन में क्या चीज आती है? क्या वो रिजवान, फहीम, वसीम को पकड़कर डेविड और जोसेफ बना रहे? नहीं, रिजवान को रिजवान ही रहने दिया जाए। लेकिन होता क्या है, हमारे उन नौजवानों की जो आप सल्लम के सामने जो एक बिल्कुल फोकस काम करना टारगेट है, वो ये था टैलेंट, ईमान, हया, इनकी हिफाजत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के अंदर जो पहली घुट्टी डाली थी ना, वो यही थी, ईमान, उनका हया, उनकी टैलेंट। और जाहिर है एक मुसलमान नौजवान की अगर आइडियोलॉजी ही ये चीज ही छीन ली जाए, ले ली जाए, उसका जहन को डाइवर्ट कर लिया जाए, तो फिर जाहिर है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों का बिहेवियर, नौजवानों के एटीट्यूड, नौजवानों का जो डायरेक्शन था ना, आप देखिए, इसीलिए तो कुरान ने उनको खैर उम्मत का टाइटल दिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे में भी रोशनी की किरण दिखाई है। जो मैंने कहा ना कि कोयले के कान से हीरों को तराशना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम चीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कामों के अंदर हमें ये चीज बहुत नुमाया नजर आती है कि अपने नौजवानों को
उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका डायरेक्शन, ये सब कुछ आपने दिखाया था। प्यारी साथियों, रहमतुल्लिल आलमीन ने पूरे 23 ईयर जिंदगी की जद्दोजहद में नौजवानों के, जो मैंने अभी आपको बताया ना, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका डायरेक्शन, उनका टैलेंट, उनका ईमान, उनकी हया, ये थी असल में वो फोकस काम, ये था वो विजन, ये था वो नज़्बुलैन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। नौजवान क़यादत को एक नज़्बुलैन से जोड़ा चाहें तो जरूर इन अल्फाज को देखिएगा। और एक चीज जो मैंने देखी कि सिर्फ नौजवान क़यादत को नहीं, है ना, जितनी भी उम्र की क़यादत की, बच्चे, बूढ़े, जवान, है ना, हर उम्र की क़यादत को, औरत, मर्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चंद स्लोगन दिया था, और ये स्लोगन मेरे और आपकी उम्र के लिए भी है। ठीक है, पहला स्लोगन क्या था? कुरान की जो आयत थी, वजहिल्लाह, अल्लाह की मर्जी की खातिर उसकी तरफ रुख करना, लिमर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जी की खातिर जीना और मरना। फिर क्या हुआ? जब अल्लाह के खातिर जिए और मरने लगे ना, तो रजी अल्लाह ताला अन्हु और अन्हा, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुआ, वो इस मकाम पर पहुंचे। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले नफ्स मुतमइन्ना। अंसारुल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को अपना वली करार देता है, अंसारुल्लाह करार देता है, जिनसे राजी होता है उनको अपना मददगार करार दे देता है। लैसल इंसाना इल्ला मा सा, उनका जो फोकस काम उनकी कोशिशों और मेहनतों से होता है, आरजू और तमन्नाओं से नहीं होता। अगर मैं और आप भी लिवजहिल्लाह, मर्ज़ातिल्लाह, नफ्सुल मुतमइन्ना बनना चाहते हैं साथियों, अगर मैं और आप अंसारुल्लाह बनना चाहते हैं, अगर मैं और आप वजील्लाह बनना चाहते हैं, अगर मैं और आप अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी शामिल करना चाहते हैं और करने में हर आने वाले दिन से ज्यादा कोशा हैं, तो प्यारी बहनों, ये नज़्बुलैन आपको मुबारक हो। इस नज़्बुलैन पे फिर मुझे और आपको चलना है। क्या आप इस नज़्बुलैन पर चलना चाहती हैं? मुझे लिखकर बताइए। मैं खुद भी इन अल्फाज को देख रही हूँ, मैं खुद भी इन चीजों को गौर से देख रही हूँ। आप चाहें तो इन अल्फाज की अपने सेलफोन से तस्वीर खींच लीजिए। ये फोकस काम होगा मेरा और आपका। अगर मैं और आप अल्लाह की मर्जी में चलना चाहते हैं, हर आने वाले दिन हम लैसल इंसाना इल्ला मा सा, कोशिश, हर आने वाला दिन कोशिश, कभी भी नाउमीद नहीं होइए, मत घबराइए। छोटे बच्चे हैं तो ये आपकी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है साथियों। मैंने कई दफा आपके सामने बात रखी कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो मसाइल भी बड़े होते हैं, बच्चे छोटे हैं मसाइल छोटे हैं, मत घबराइए। बड़े बच्चे हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना विजन क्लियर होना चाहिए, अपनी मेहनत, अपना काम, फोकस, घबराना नहीं है किसी भी लम्हे। तो अजीज साथियों, ये नज़्बुलैन फिर आपको मुबारक हो। जितना बड़ा नज़्बुलैन होता है ना, उतनी मेहनत करनी होती है। मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है कि जो शख्स माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करना चाहता है तो वो जूतों की कीमतों को नहीं देखता। क्या समझिए आप? उसके सामने उसका काम फोकस होता है, वो उसको उस चोटी तक चढ़ना है, वो चीज उसकी नजर में होती है ना। और बीच के जो सारे काम और तैयारियां होती है ना, वो उनको नहीं देखता है, बल्कि अपने काम को फोकस रखता है। बड़ा गोल है तो बड़ा काम करना होगा। यही वो तड़प थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा की खामोशी से मैदान अमल में ले आई थी। साथियों, आइए मैं और आप भी एक नज़्बुलैन लेकर चलने वाले बन जाए, जो रहते तो जमीन पर है लेकिन उनका तस्करा आसमानों पर होता है। काम वो जमीन पर करते हैं, इनाम आसमान पर तय होता है। प्यारी साथियों, आपको लगता है कि ये असूल मेरी और आपकी भी जिंदगी बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला? अच्छा, रहमतुल्लिल आलमीन के ज़ेर तरबियत नौजवानों के औसाफ। प्यारे साथियों, मैं जरूर आप लोगों से स्पेशल कहूंगी कि इस प्रेजेंटेशन को ना, मेरा ख्याल है कि फोरम पे ये लोग मुसलसल हर प्रेजेंटेशन को डाल रही हैं। मैं खुद भी जाकर दोबारा चेक कर लूंगी, लेकिन अब तक जो मैंने पिछले हफ्ते तक देखा था, इस प्रेजेंटेशन को जरा सा अलग से पढ़िएगा और देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के लिए, अच्छा जब मैं नौजवान कह रही हूँ तो ये मत समझेगा कि सिर्फ टीन एज, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्र के लोगों की तरबियत के लिए इन चीजों को फोकस किया था, लेकिन बिलखुसूस नौजवान। ठीक है, तालीम की अहमियत, हम जंग बदर का वाकया सामने है। एहसास जिम्मेदारी, तो इतनी एहसास जिम्मेदारी थी उन साहबा कराम में कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया के स्लोगन पर खत्म हो गए। मशवरे की अहमियत, जंग बदर से लेकर फतेह मक्का तक हमें नजर आता है। ये चीजें हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हिम्मत, हौसला अफजाई,
کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت دلائی. ایک مٹھی کھجور کی اتنی قدر کی کہ پورے سامان پہ بکھیر دیا, اور اتنی قدر افزائی کی اسے ایک مٹھی کھجور کی. تھوڑے سے بھی کام کی فکر اور قدر افزائی کرنی ہے, حوصلہ دینا ہے ساتھیوں کو. حیا کی فکر آپ کو نوجوانوں میں نظر آتی. بصیرت, فتح مبین, صلح حدیبیہ کے اندر فتح مبین کا جو لفظ جس طریقے سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا, اور جو بصیرت افروز نگاہ تھی, ہم نے دیکھا کہ چند سال کے اندر ہی اندر 2-3 سال میں مکہ فتح ہو گیا. پر امید ہونا غزوہ خندق کا ایک ایک واقعہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان توڑ توڑ کر اپنے افراد کو امید دلایا. پرعزم, منصوبہ ساز. خیبر کی جنگ میں تو یہ لفظ بہت ہی زبردست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرعزم بھی تھے اور منصوبہ ساز بھی تھے. اپنے اوپر قابو پانا, ساتھیوں پر اعتماد. ابھی بلتا کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. محنت, سخت کوشی, اس کے میں بھی ہم سارے غزوات کو دیکھ سکتے ہیں. خود اعتمادی دی اپنے ساتھیوں کو, سیکھنے کی صلاحیت پیدا کی. نہیں بھی حضرت حذیفہ بن الیمان کا جو میں نے ذکر کیا نا, ان کو پڑھیے گا. سیکھنے کی صلاحیت, آگے بڑھانا, چننا, چوز کرنا, یہ سب ہمیں نظر آتا ہے. لوگوں سے تعلقات, لوگوں سے جزاک اللہ سعدیہ, انشاءاللہ تعالی جو اور نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں اپلوڈ ہو جائیں گی. لوگوں سے تعلقات, امیر غریب, ہے نا. تعلیم کی بنیاد جو تھی وہ مواقعات قائم کر کے آپ نے کی. کامیابیوں پر کو یاد رکھنا, اس سے حوصلہ ملتا ہے. غلطی پر نگاہ ہے, تنقید بھی ہے, چیلنج بھی دے رہے ہیں, لیکن میں نے کہا نا ٹیکنیک تھی اللہ کے نبی کی, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ این ممکن ہے اگر میرے پاس ساری تیاری ہوگی تو میں اگلی ہی کلاس میں اس کو لے آؤں. پھر وقت سے استعمال, نصب العین سے عشق, دور اندیشی, یہ وہ چیزیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تیاری میں نا چیزوں کو کور کیا. پھر آپ دیکھیں نوجوان قیادت, روشنی کے جو مینار ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معلمین تیار ہوئے, یہ سب نوجوان ہیں. حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسر اور محدث تیار ہوئے. حضرت ابو عبیدہ, حضرت خالد بن ولید, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل ہمیں ملے. حضرت ابو بکر, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حق گو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لیڈر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش اور جذبہ, سبحان اللہ, وہ جوش اور جذبہ تو کتنے نوجوانوں کو کھڑا کر دیتا ہوگا جب بھی وہ پڑھتے ہوں گے کہ کم سنی میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ دوں گا اور ٹانگیں پتلی ہے نا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. پھر خواتین میں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کرتے ہیں, وہاں حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اصحابۃ رائے کہ حضرت عمر فاروق نے ان کو اپنی مجلس شورا میں بھی شامل کیا تھا اور ان کی رائے سے بہت فائدہ اٹھایا کرتے تھے. حضرت اسماء بنت یزید جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جوہر خطابت تھا. حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نہ صرف طب میں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے تھے میڈیکل کے اور جراحی کے, چھوٹے موٹے آپریشن بھی کر لیا کرتی تھی, بلکہ حضرت ام عطیہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ان کو اپنی بیٹی کا جو انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے تو ام عطیہ کو نہلانا, غسل میت انہی کی طرف سے احادیث ہمیں مل رہی ہوتی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. حضرت مصعب بن عمیر, سبحان اللہ, مبلغ اسلام, نوجوانی کی زندگی خوشبو سے معطر, اور اسلام لائے تو پھر آپ دیکھیے کیا حالات ہوئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذات الناطقین کا خطاب نوجوانی کی عمر میں لیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی میں گورنر بصرہ بنائے گئے, اور ان کی بھی بڑی زبردست کہانی ہے. نو عمر اسامہ بن زید, بڑے بڑے صحابہ میں نوجوان قیادت. پھر ہم سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں صلح حدیبیہ کے واقعے کے اندر, تو بالخصوص حضرت زید بن ثابت, حضرت زید بن حارث, ہے نا, حضرت بلال, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خباب بن ارد, یہ سب نوجوان تھے. کس کا نام لیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, دولت کا, لیا جائے گا تو استقام دنیا کی امامت کا, جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا وجعلنا للمتقین اماما والی بات, وہ ذہن میں بار بار لائیے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساتھیوں, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تیاری پر زور دیا. افراد کی تیاری میں پچھلے ٹاپک پہ واپس آ رہی ہوں. آج ہم نے نوجوانوں پہ بات کی ہے نا, لیکن فرد اہم ہوتا ہے, اصل سرمایہ فرد ہے, اور پھر اس میں بالخصوص وہ شباب کی عمر کے نوجوان لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں, نوجوانوں میں, بڑوں میں, عورتوں اور مردوں میں پہلے نصب العین سے عشق پیدا کیا, پھر انہیں آزمائش سے گزارا,
اور مختلف عمروں کے لوگ تیار ہوتے چلے گئے، مختلف عمروں کے لوگ. مایوسی کہیں بھی نہیں آنی چاہیے ساتھیوں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم میں پرو دیا تھا تاکہ وہ ایک قوت بن جائے. عزیز بہنوں، یہ حدیث تو کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی نا، کئی بار سنی ہوگی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ نے جب بھی یہ حدیث سنی ہوگی تو کچھ نہ کچھ پیسے $5 $10 $20 کسی کو دے دیا ہوگا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے. لیکن اس حدیث کا اطلاق $10 یا $20 پر ہی نہیں ہوتا ہے، صرف منی ٹیکنگ اور گیونگ پر نہیں ہوتا ہے. دینے اور لینے کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ساتھیوں. دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ آئیڈیالوجی، سویلائزیشن، کلچر، ویلیوز، مشن آف لائف، یہ سب چیزیں دنیا کو دی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں. ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دینے والے بنا کر بھیجے گئے، دنیا سے لینے والے نہیں. دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنا ہے، ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے، ترقی، کلچر، سوچ، فیشن، ویژن، یہ سب کچھ ہمیں دنیا کو دینا ہے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے مجھے اور آپ کو. دنیا چاہے ہمیں کتنا ہی بولے کہ ہم ترقی میں، فیشن میں، آرٹ میں ہم بہت آگے بڑھ گئے، لیکن ترقی کے تمام دعوے کبھی کبھی بڑے کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں. سب کچھ دھوکہ ہے ساتھیوں. آپ غور کریں کہ میں بعض اوقات دیکھتی ہوں نا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سلوگن دیا جاتا ہے کہ یہ صدی اسپیچ آف فریڈم کی صدی ہے نا، یہ صدی ویمن رائٹ کی صدی ہے. ساتھیوں، ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کی صدی میں اندھیرے سے نکال دیا اور اس کو عزت، عظمت، شرف، وقار دیا. اسلام نے جہالت کی تاریخی سے مجھے اور آپ کو باہر نکال دیا ساتھیوں. اس لیے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی و مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. وہ شمس والضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین یا رب العالمین. پیاری ساتھیوں، عزیز بہنوں، انشاءاللہ تعالی ہم اب آپ کا کیو سیشن ہم اسٹارٹ، اور انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر پہ بھی بات کر سکتی ہیں. آپ پچھلے لیکچر افراد کی تیاری میں اگر کوئی پوائنٹ آپ کو لگتا ہے مسنگ رہ گیا ہے تو آپ اس پر بھی بات رکھ سکتی ہیں ساتھیوں. اور آپ کو یہ ساری چیزیں، یا آپ چاہیں تو اس حدیث پہ بھی بات کر سکتی ہیں. آپ چاہیں تو وجعلنا للمتقین اماما، اس آیت سے آپ کو سیرہ کی روشنی میں، کیونکہ ہم جب قرآن سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم سیرہ سے مدد لیتے ہیں، ہم حدیث سے مدد لیتے ہیں، ہے نا. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ اپنی بات آ کے رکھ سکتی ہیں. جی ساتھیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی، اللہ. آن لائن کیمپس سعدیہ. میں یہ سوچ رہی تھی، الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے آپ کا لیکچر ہمیشہ سے موٹیویٹنگ ہوتا ہے اور ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ ڈس اپوائنٹیڈ فیل کرتے ہیں. خاص کر کے آج اگر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نوجوان کی تیاری میں، تو ہمارے پاس تو ثم الحمدللہ، فرسٹ آف آل اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ابھی بھی موقع دیا ہے اور مرنے سے پہلے یہ موقع دے دیا. I always think it like this. بالکل، جزاک اللہ سعدیہ. کہیں بھی مایوسی نہیں ہے. گڈ. جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
इंशाल्लाह हमारी ही नस्लों में से जब हम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना पढ़ते हैं और ख़ास करके हम दुआ करते हैं तो हम ये चाहते हैं, और इसके लिए सबसे पहला टूल ही हम बीइंग मदर्स, हमारा टूल ही दुआ है, और फिर उसके बाद हमारी मेहनतें हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जैसे किसी बहन ने भी लिखा था, और वो ये था कि प्लीज़ अपनी औलाद से ज़्यादा ये सोचिए कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, हमें उसको भी सोचना है। दुनिया में कल उमर सलमान का एक स्टेटस था बहुत प्यारा कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट द चाइल्ड हु इज डाइंग इन सीरिया, डू नॉट फॉरगेट द चाइल्ड हु ड्राउन्ड, डू नॉट फॉरगेट द चाइल्ड हु इज गोइंग whose house is being bombarded and this and this. So a दाई और जो वो होता है वो कंपैशनेट होता है, और उसकी नज़र जो है ना ऑल अराउंड होती है। अगर हम आज समा अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है अपने घरों में, तो हम इसकी इस तरह के अल्लाह हम सबको अपनी अमान में ही रखे, लेकिन जो जहाँ जिस हालात में है अल्लाह उनसे, तो अगेन देयर कम्स आवर जमात जो हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम इस इस्लाम के पैगाम को आगे पहुंचाएं। हम दुनिया में जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए हम कुछ करें, या हम फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जो हेल्प दे सकते हैं वो जरूर दें ना। तो इस तरह से हम जी जज़ाकिल्लाह सादिया, बिल्कुल ये चीज मिसिंग थी, तुमने इस चीज को कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह के। मैंने बल्कि बीच में एक जगह कहा था मत घबराइए, जिनके बच्चे बड़े हो गए, जिनके बच्चे छोटे हैं, काम का तो ग्राउंड तो हमारे सामने बिल्कुल है। और ना सिर्फ हमारे अपने बच्चे, दुनिया में जितने मुसलमान बच्चे हैं, कहाँ कहाँ किन किन हालतों में, है ना। बहुत अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाया, इसलिए मैंने कहा कि दुआ का तो रास्ता खुला ही है ना। और कौन साथी आएंगी, आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सलमा सदफ, ऑनलाइन कैंपस। सलमा बोलो, कैसी हो सलमा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपका हर लेक्चर थोड़ा सा आई ओपनर होता है, उन गोशों पे रोशनी डलती है जो कि मोस्टली जहन में फिक्र में आते नहीं है। तो बस ये आपका लेक्चर सुन के मुझे बस एक जहन में चीज आती है कि हमारी जो फिक्र करने की जो है ना हैबिट हमें थी, जैसे मैं जब सोचती हूँ बचपन में हम किसी चीज को सोचा करते थे, कुछ चीज जहन में आती थी तो उस पर थोड़ा सा सोचा करते थे कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्या मामला हो सकता है। तो आजकल मैं देखती हूँ इवन मुझ में भी, मेरे बच्चे तो जाहिर है वो उस चीज से बिल्कुल ही, मुझ में भी जैसे मैं फिक्र जो है ना वो नहीं कर पाते, किसी चीज के ऊपर सोच नहीं पाते, बल्कि वो हमारे बच्चों में वो चीज, जैसे वो मीडिया की तरफ चले जाते हैं, वो टीवी देख लेते हैं, वो मतलब अपने टाइम को, वक्त का जो सही इस्तेमाल है ना वो नहीं कर पाते। जो चीज दिल से उठती है, किसी चीज पे सोचना चाहते हैं, फिक्र करना चाहते हैं, उसको ये चीजें ब्लेंड इन हो जाती हैं कि फिर हम बैठ जाते हैं। तुम्हारी बात कट रही है, मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ कि जो मैंने शुरू में बात रखी थी ना, फिक्री तैयारी, तुम्हें अब समझ में आ रही है वो चीज? मैं इसको बेस बिल्कुल ये 100% ये किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल। जज़ाकिल्लाह सलमा। और हमारे तवज्जो तलब है। हाँ बोलो, अपनी बात करो। बस मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ या अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको भी देखती हूँ, तो ये चीज मिसिंग होती चली जा रही है। बच्चे वो सोचते हैं जो उनको सोशल मीडिया सोचने पर मजबूर कर रहा है, बच्चे वो सोचते हैं जो टीवी में देखते हैं, वो सोचते हैं, मतलब उनकी सोच बिल्कुल ऊपरी है, वो डीप सोच उनमें नहीं आ रही। ये चीज मिसिंग होती चली जा रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, और इस मिसिंग को इंशाल्लाह ताला हमने ही पूरा करना है। उनकी सोचों को, चीजों को, कोई ना कोई जाविया, कोई ना कोई चीज। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ अल्लाह ताला की तदबीरों पर कि कोई दुनिया का कोई ऐसा वाकया ही अल्लाह ताला ले आते हैं जिस पर वो बैठ के सोचने लगते हैं, कभी डिस्कस करते हैं, बस वही वक्त हमें कैच कर लेना है उनकी फिक्रों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात है सलमा, जज़ाकल्लाह खैर। जी, कौन साथी आएंगे? जी, मैं शुमाइला, टोरंटो कैंपस से। जी शुमाइला। जी मैं बस शुमाइला ठीक हो? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुमाइला, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी 4 बेटियां हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह की 4 रहमतें हैं तुम्हारे घर में, है 4 शहजादियां। चलो ठीक है, छोटी छोटी हैं सब? जी, 6 साल से 13 साल एज है उनकी। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हसीन तरीन उम्र है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह से। जी शुमाइला, क्या कहेंगे आप? जी, बस मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम ये फिक्र कर रहे हैं कि हम जो हैं वो अगर उतनी एज में नहीं है या नौजवान नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें अपने बच्चों को फोकस करने की जरूरत है।
اور جو کام ہم خود نہیں کر سکے یا ہماری سوچ دیر سے بنی ہے تو ہم اپنے بچوں کے اندر ابھی سے وہ سوچ پیدا کریں. اور میں اپنی بیٹی کو بھی, جیسے بڑی والی بیٹی کو, یہی بات کہتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم یہاں پہ دعویٰ کا لینگویج بیریئر ہے. اس کے باوجود ہم کریں گے, لیکن آپ لوگوں کی لینگویج کیونکہ آپ نے یہیں سیکھا ہے, یہیں اسی ماحول میں آپ پل بڑھ رہے ہیں, تو وہ ریسپانسبلٹی آپ کے کندھوں پہ زیادہ ہے کہ آپ کو ان کے ماحول کے اندر گھس کے اور دعویٰ کا کام کرنا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس طرح سے دعویٰ کا کام نہیں کر سکتے, لیکن ایک نسل تیار کر سکتے ہیں. بالکل زبردست شمائلہ, ماشاء اللہ سے. اور یہ چیز بڑی حوصلہ دیتی ہے. ہماری ساتھی ہیں ادھر ویسٹ کی سائڈ پہ رہتی ہیں, تو وہ بیچاری کو کچھ ایسی صحت کی آزمائش میں ہے مبتلا, لیکن اتنا وہ مطلب میں نے ان سے جب بات کیا تو کہہ رہی تھی کہ میں کبھی میں MCNA میں پڑھا کے اپنا حصہ ڈال دیتی ہوں بہن, کبھی میں کوئی وائم کی لڑکی کو کوئی چیز کی تیاری کری ہوں. جو تم نے کہا تھا نا اب ہمارا لینگویج بیریئر آتا ہے, تو بعض خواتین جو ماشاءاللہ بہت اچھی لینگویج کو سمجھ بھی رہی ہوتی ہیں, تو کس طریقے سے پیچھے تو اتنے چھپے ان کے کام نظر آئے. میں اتنی حیران ہوئی, میں کہ اللہ ماشاء اللہ سے صحت کی آزمائش کے ساتھ امت کی فکر ہے نا. یہ تو بالکل بہت زبردست ہے نا. تم نے بہت اچھی بات کیا کہ ہمارے بچے سسٹم کے اندر ہیں, سسٹم جو ہے وہ اچھے سے وہ سمجھ رہے ہیں تو وہ بہت اچھا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. گڈ پوائنٹ. اور کون ساتھی آئیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملٹن سے. دوبارہ بتاؤ بہنا نام. میمونہ ملٹن سے. مونا ملٹن سے. چلو جی میمونہ. میمونہ جی جی. میرے ذہن میں دو چیزیں آ رہی تھیں کہ مطلب یہ ساری چیزیں پڑھ کے مجھے لگتا ہے جیسے ہم سب سوئے پڑے ہیں, مطلب ہم سوئے ہوئے جاگے ہیں کہ اب جو ہے نا صبح ہوئی ہے. مطلب ہم لوگوں کی نا پریورٹیز ہی چینج ہو گئی ہے. ہم لوگ زندگی میں اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ مطلب نمبر اچھے لے لو, انجینئر بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, ادھر ترقی ہو جائے, ادھر ترقی ہو جائے. ہر جگہ مطلب ہمیں دنیا کی پڑی ہوتی ہے. ہم نے اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف بھی لے کے چلیں. ان چیزوں کی بھی ہمارے دین کی ضرورت ہے. مطلب ہمیں بچوں کو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے. یہ وہ مطلب ہم ان کی اب برنگنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کلاس میں اچھے نمبر نہیں آئے, نو گڈ, یہ اچھی بات نہیں ہے. مطلب ہم کبھی اس چیز کے اوپر نہیں جاتے کہ وہ چیز نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. مطلب اور دوسری چیز جو مجھے آئی ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ بیڈ کمپنی, تو اس میں سوچتی ہوں کہ مطلب وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا, ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم اس طرح سے کیوں نہیں کرتے کہ ہم ان بچوں کو بھی صحیح کر کے کمپنی ہی اچھی کریں نا, کیونکہ ہمارا بچہ کب تک بچے گا, ہم اپنے بچے کو کب تک چھپا کے رکھ سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم سوسائٹی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. بس یہ جزاک اللہ میمونہ, یہی تو وہ اصل کام ہے جس کی طرف میں بار بار جو میں نزلین کی بات کر رہی تھی نا آپ لوگوں کے سامنے, یہی تو اصل کام ہے کہ آپ لاکھ اپنا گھر صاف کر کے کچرا باہر رکھ دیں, کبھی تو وہ گندگی اڑ کے آپ کے گھر میں آئے گی نا. تبھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ آئیے مل کے سوسائٹی میں کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دعویٰ کے اتنے سارے شعبے ہیں, بچوں کے اندر MCNA کا کام ہے, کچھ نہیں ہے آن لائن ہم کر رہے ہیں. میمونہ بہت پیاری بات کی طرف تم لے کر آئی ہو. جب تک مل کر نہیں کریں گے, اپنی فکر کرتے ہیں نا, تو پھر یہیں سے ہی ہمارا کام غلط ہو جاتا ہے. گڈ, جزاک اللہ میمونہ, بہت اچھی بات کی طرف تم نے توجہ دلایا. اور کون ساتھی آئیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام آسیہ ہے اور میں مسیساگا کیمپس سے ہوں. جی آسیہ. جی میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے مسلم یوتھ میں بھی جیسے نا یونٹی ہونی چاہیے. تو جیسے میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ گریڈ 11 میں, جب کووڈ ہوا اس سے پہلے تو ہی از اے ممبر اس میں الہدا جو یوتھ ہے اس میں اور المغرب میں. تو ہی نوز لیکچر ہوتے رہتے ہیں, ان کے حلقات ہوتے ہیں فرائیڈے کو, تو کافی اٹیچ ان چیزوں سے. تو اب اس نے جب ورلڈ ریلیجن پڑھا اور اس نے دیکھا کہ کافی اسلام کو نا غلط طریقے سے یہ ٹیچر جو ہے وہ بتا رہی ہیں, تو اس نے المغرب کے ایک اسکالر ہیں, اس نے ان کا لیکچر ارینج کرایا اپنی کلاس میں اور پورا اسکول والوں نے اس کو چانس دیا
पूरा 1 घंटे का वहाँ पे लेक्चर उन्होंने अपनी क्लास में अरेंज किया इस्लाम पे, और उसको मतलब अच्छी तरह से जो उसमें चेंजेस आनी थी टीचर के जो लेक्चर में जो इस्लाम के ऊपर होने थे, एंड दे मेड द चेंजेस आल्सो। सो वही है कि हमें अपने बच्चों पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। और बताइए क्या तो लगता तो यही है कि वो खाने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, मगर दे लर्न जब वो इकट्ठे होते हैं तो। बिल्कुल तो नहीं आपने बहुत अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाया, जज़ाकिल्लाह। पता है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं। अभी तो चले बच्चे सब घर में हैं, उनकी नवाज़ुही की फिक्र कर लेना है ना। हमारे बच्चे वो हो जो स्कूल में और यूनिवर्सिटीज में जाके नमाज पढ़ाए, उनके हाथ में क़यादत होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन ये सब चीजें हमें कोई, मैं फिर कह रही हूँ, कहीं ना उम्मीद नहीं होना है कि अच्छा हम तो अब तो वक्त गुजर गया, अब हम क्या करें। कुछ नहीं रहना। जो काम इज्तिमाइयत के अंदर हो रहा है माशाल्लाह से, आप उसके अंदर अपना हिस्सा डाल दें। जज़ाकिल्लाह। आप क्या जी, और कौन साथी आएंगी? जल्दी जल्दी आइए साथियों। आपको अगर एग्जाम के लिए कोई बात पूछनी है, कोई और चीज है, या आज के टॉपिक पे, तो आप अपना बात रखिए। जी शाहिदा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहती हूँ। शाहिदा थोड़ा सा जोर से बोलो चंदा। मैंने किसी रिसाले में एक छोटा सा कुछ पॉइंट पढ़ा था, मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि 1990 के टाइम्स में ये खबर छपी कि 20 से 50 साल के बाद पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा। इंग्लैंड वगैरह के माहिरीन इकट्ठे हुए, काफी गौर व फिक्र के बाद कुछ समझ में न आया। आखिरकार रोम में जॉन पॉल पॉप सेकंड के पास मसला लेकर गए, तो उसने एक सवाल किया कि ये बताओ कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादातर स्कूलों और खास तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं या मकतब व मदरसे में। तो माहिरीन ने कहा कि 80% से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और बहुत कम बच्चे मदारिस व मकातिब दीनिया में पढ़ते हैं। तो पॉप ने एक फिक्रा कहा, ये फिक्रा बहुत सोचने के लिए हमारे लिए लम्हे फिक्र है। कानों में रुई डालकर सो जाओ, फिक्र न करो, ये बच्चे हमारे हैं, मुसलमानों के नहीं। ये बहुत फिक्रमंदी की बात है। हमारे बच्चे किस जगह पर जा रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने यही चीज आप लोग के सामने रखी थी ना, कि ये नहीं होता कि नाम बदल देंगे, बल्कि जाहिर है उनकी हया, उनका टैलेंट, उनकी जवानी, उनकी आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो अगर चेंज हो जाती है तो फिर बच्चे हमारे नहीं रहते। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मसरत फरजाना बोल रही हूँ एरन सेंटर से। बेटे मेरा तो ये है कि मुझे इतना मतलब पढ़ना लिखना भी इतना ज्यादा नहीं आता ना। कंप्यूटर जो सादिया बता रही थी बेटे, मैं वो हूँ जो एक आप बोल रहे थे कि दो ने रिस्पॉन्स नहीं किया। मुझे कंप्यूटर का नहीं आता कुछ भी, बस मैं ये कर सकती हूँ कि सबके लिए दुआ करती हूँ। हमारी उम्रें बहुत ज्यादा निकल गई और इंग्लिश का मसला है, हम ज्यादा नहीं कर सकते। बच्चे भी सब बड़े हो गए, नवासा नवासी पोता पोती भी सब बड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो करती हूँ, मगर ये आपसे बोलना था कि हम लोग खाली दुआओं पे रह के जो है, अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारा नज़्म नैल हमारे सामने वाज़े कर दे परवरदिगार। और जिन लोगों के साथ जोड़ दिया है अल्लाह ताला, ऐसा ईमान, तक़वा, हिकमत, फिरासत, इस्तिक़ामत दीन नसीब फरमा। अल्लाह ताला इन लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह ताला जिनको आप लोगों ने उठा के खड़ा कर दिया है, अल्लाह हम लोगों को भी ऐसा ईमान दे दे। मगर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं समीना बेटे, बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह है नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं, मगर ये जैसा इज्तिमात में आना और इनके लेक्चर सुनना वो बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूं कि ये लोग आपकी दिल सोजी, आपकी तड़प आपने शायद कुछ ना जानकर भी हम सब बहनों के अंदर ना बहुत कुछ उंडेल दिया चंद सेकंड के अंदर, है ना। कभी भी यूं ना समझिए पापा कि आप कुछ नहीं कर सकती, वक्त गुजर गया, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप कंप्यूटर के जरिए नहीं कर सकती और आप किसी ग्रुप में हैं तो इंशाल्लाह ताला वो बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपसे फोन पे कांटेक्ट करके आपकी जो भी ग्रुप बना है उसमें आपकी सोच फिक्र या आपका फीडबैक ले लेंगी। इज्तिमाइयत का यही बहुत बड़ा फायदा होता है। ग्रुप इसीलिए बनाया था कि किसी में कम क्वालिटी होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में बहुत ज्यादा होगी,
तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, सब एक दूसरे को मजबूती से इंशाल्लाह हाथ लेंगे इंशाल्लाह और ताला इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप जिस ग्रुप में भी होंगे उस ग्रुप का पूरा नंबर आएगा इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2 बात ये कि आपकी दुआ आपकी तरफ उम्मत के बच्चों के लिए है, ये बहुत बड़ी अहम चीज है। आप बिल्कुल फिक्रमंद नहीं हो, टिप्स वगैरह इंशाअल्लाह ताला बाद में भी आपको मिल सकती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि घबराइए नहीं, ईमान की बीज है आपके बच्चे के दिल में, जरूर है ईमान की बीज, मुझे बिल्कुल आंख बंद करके यकीन है इस बात पे। इंशाअल्लाह ताला जब कभी भी कोई खूबसूरत सी हवा, ख्वार, कोई वाकया, कोई ऐसा मरहला उनकी जिंदगी में आएगा जिससे ना उस बीच में ना नमो आ जाएगी, इंशाअल्लाह ताला वो बीज एकदम बन के खड़ा हो जाएगा। आप मत फिक्र कीजिए, आपने ईमान की बीज डाली है बच्चों में, इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि अपने दूसरे कामों में भी ना, हो सकता है इनकी औलादों में से कोई खड़ा हो जाए और आपका हो सकता है जारिया बने और आपको बहुत मजे की चीजें मिल रही हो दुनिया से ना, तो इसलिए मत घबराइएगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ साथियों कि आप मायूस कहीं नहीं होइएगा। मुझे ये चीज बड़ी तकलीफ देगी कि मुझ समेत या आप हमें से कोई बहन भी जिनके बच्चे छोटे हैं या बच्चे नहीं हैं या बच्चे बड़े हो गए या बच्चे आपसे दूर हैं, हमारा विजन काम सिर्फ हमारे बच्चों तक नहीं है ना। आप मोहल्ले पड़ोस के बच्चे हैं, कोई चीजें, मैं आपको एक आंटी का वाकया बताऊं तो बहुत बेचारी ज़ईफ भी थी और बहुत बीमार भी थी, तो वो उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं जब उनसे मिलने जाती थी तो वो मुझे ना इतने सारे रंग बिरंगे ना साटन के छोटे छोटे से बटुए पकड़ा देती थी। तो मैं अक्सर कहती थी उनसे कि मैं इसका क्या करूंगी, तो कहेंगी कि ना मेरे पास तो कुछ भी देने को नहीं है इस्लामी इज्तिमाई को बेटा, लेकिन ना मेरे पास साटन की कुछ शलवारें थी पुरानी, मैंने उनकी रंग बिरंगे ना बटुए बना लिए, तो बेटा इन बटुओं को ना $5 में बेच दो और वो जो पैसे हो ना वो तुम फिर लगा दो अपने उस काम के लिए जिसके लिए तुम फंड मांगती हो। मैं उन बटुओं को लेकर घर आई और मैं इतनी देर तक उसको हाथ में लेके देखती रही। मैं कह रही थी कि बाज अफराद अपने कद काट से बड़े नहीं होते हैं, अपने जज्बे, अपनी सोच, अपनी फिक्रों। अल्लाह ताला आप देखिए सूरह तौबा में अल्लाह कह रहा है ना उन लोगों को जो जंगे तबूक में नहीं शरीक हुए थे लेकिन आंसुओं से वो रो रहे थे, वापस अपने घरों को जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको कितना जबरदस्त अवार्ड दिया, कितना जबरदस्त अवार्ड दिया कि आप हर वादी में, अल्लाह के नबी वो आपके साथ हर वादी में शरीक थे। साथियों हम खैर उम्मत है, मैं बार बार आपको इस टॉपिक पर लाती हूँ, हम खैर उम्मत है। खैर उम्मत के लोग सिर्फ अपनी फिक्रें नहीं करते, वो अपने आप को नहीं देखते, उनका विजन, उनकी सोच बहुत दूर तक होती है ना। इंशाअल्लाह ताला किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और ये ग्रुप सिर्फ इसलिए बनाया था कि सबका थोड़ा या ज्यादा हिस्सा हो जाएगा और फिर सब इस नेकी में भी शरीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जो उस दिन आप सब प्रेजेंट करेंगे। प्यारी साथियों बस बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया, इंशाअल्लाह ताला अब हमारे पास 3-4 ही टॉपिक्स रह गए हैं और वो बड़े इम्पोर्टेंट है। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते इसी टॉपिक को आगे बढ़ा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी टेक्निक या मेथड यूज किया था तरबियत के हवाले से उन सबको भी हम लेकर आए। और मोहसिन निस्वा भी हमारे पास बहुत अच्छा एक टॉपिक है, फिर अभी हमें और भी चीजें इंशाअल्लाह ताला। प्यारी साथियों एग्जाम के हवाले से अगर किसी बहन को कोई भी मुश्किल है तो वो बात कर सकती है। जी जी बिल्कुल रखो बहना, कौन हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुमाइला मिल्टन कैंपस से। जी जी शुमाइला, मुझे बस इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करनी थी, मुझे एक प्रेजेंटेशन के बारे में क्वेश्चन पूछना था। टॉपिक तो इतना इंटरेस्टिंग है कि इस पे तो माशाल्लाह अगर हम एक घंटा भी एक बहन बोले तो बहुत कम है, क्योंकि हम सबकी ज्यादा सोच फिक्र अपनी औलादों के लिए ही होती है, नौजवानों के लिए होती है। बस मुझे ये कहना था, एक सेइंग है कि द किड्स डोंट लिसन टू यू, दे वॉच यू। तो आप जितना उनको बोलते रहे 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, वक्त पे नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये करो वो करो, और अगर आप खुद उस पे अमल नहीं करते ना तो बच्चे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दे टेक फॉर ग्रांटेड के खुद तो कर नहीं रहे, हम लोग को बस बोले जा रहे हो, फिर वो इरिटेट होते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि हम लोग
खुद करेंगे, हम लोग रोल मॉडल होंगे तो हमारे बच्चे हमें फॉलो करेंगे। प्लस पिछली क्लास से मुझे एक बहुत आइडिया मिला था कि एक हल्का होना चाहिए फैमिली, और मुझे बहुत उसको चीज को मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि हम लोग वीकली, चलो सही क्योंकि बच्चे बिजी हैं, बड़े हो गए हैं, टीन एज में हैं, तो एक दो छोटे भी हैं, तो मैंने कहा कि हम लोग बैठ के कुरान को एटलीस्ट ना और बड़े फन वे में, हमें कोई ऐसी चीजें देखनी चाहिए जो आजकल के जमाने के हिसाब से, कि अगर हम उनको जो है ना लेक्चर्स एक एक घंटे के सुनाने छोड़ जाएंगे ना, दे गेट बोर्ड। आजकल मीडिया जहां बुराई फैलाता है वहां मीडिया बहुत अच्छी चीजें भी दिखाता है, इतनी एनिमेटेड, इतने कार्टून लिहाज से आपको कुरान और अच्छी बातें, और ये भी आप अपने बच्चों के साथ बैठ के खुद, ये नहीं कि आप लगा के खुद अपने कामों में बिजी हो जाए, नहीं, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर देम। और दूसरा ये मैं फील करती हूँ कि हम ना हमें अल्लाह से पहले जोड़ना चाहिए और फिर उन पे चीजें सादर करनी चाहिए कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज, बट इफ दे डोंट फील द कनेक्शन, वो उनके लिए एक रिचुअल है, इबादत नहीं है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता उनको अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह हम लोग अभी हमारे वॉलंटियर आवर्स हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मस्जिद के वॉलंटियर आवर्स लगाऊं, या जैसा मैं कुरान पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मैंने अपनी छोटी बेटी को अपने साथ लगाया है कि आप मेरी हेल्प करो, छोटी छोटी चीजें जिससे वो साथ जुड़े। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली नहीं करेंगे उन्हें इसका दर्द भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है शुमैला, मेरी प्यारी साथी, जो एग्जाम वाली बात पूछ रहे हैं पूछ सकते हैं, वक्त थोड़ा मुझे ये पूछना था कि क्या हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? बना लो, जैसी मर्जी तुम्हारी। ठीक है, क्योंकि वो फिर टाइपिंग और उसमें अगर मुझे आसानी होती है तो चले चीजें कोई मसला नहीं है, इंग्लिश में बना लो, प्रेजेंट भी इंग्लिश में कर सकती हो, और अगर चाहो तो इंग्लिश में बना लो और उर्दू में बोलो, अगर बाकी बहनें भी और अच्छे से समझ लेंगी, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन बस अभी हाँ बोलो जी। दूसरी बात ये मुझे पूछनी थी कि हमारा था कि औरतों का किरदार तो सिर्फ दीन में तो नहीं ना, मतलब हम दूसरी फील्ड में भी हम लोग औरतों का किरदार शो कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस वो चीजें कनेक्ट जरूर सीरा से करना। जी जी, इंशाल्लाह। और एक चीज और भी मैं रख देती हूँ थोड़ी सी प्यारी बहना, कि जैसे अभी शुरू में भी एक बहन ने पूछा था कि 3 मिनट में, तो प्यारी साथी 3 मिनट में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उसको ना अपना नाम या अपने ग्रुप का नाम या अपने कैंपस का नाम बताने में ही ना तुम्हारे 1 मिनट निकल जाएंगे, इनमें वक्त ना लगाना। तुम्हारे ग्रुप के नाम सब मेरे पास आ चुके होंगे, मैं ही इसको अनाउंस कर दूंगी ताकि तुम लोगों को पूरा का पूरा 3 मिनट मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के तुम लोग बिल्कुल प्रेजेंटेशन शुरू कर देना। तुम्हारी प्रेजेंटेशन हमारे पास होगी, हम उसको चलाएंगे, तुम बोल सकती हो कि नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट पे ले आएंगे, फिर नेक्स्ट पे हम ले आएंगे। लेकिन अगर हम हर बहन को देंगे, आ रही है नहीं आ रही है, किसी का कुछ मसला है, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इसलिए हमने तुम लोगों से 14 दिसंबर में प्रेजेंटेशन मांग ली, हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और हर कैंपस को बुलाएंगे। पहले एक कैंपस की और प्रेजेंटेशन हो जाएगी, फिर दूसरे पे कैंपस की हो जाएगी, और कितना मजा आएगा और कितना अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको सुनने के लिए। और ये 16 टॉपिक्स जो आप 4 कैंपस में, नहीं 16 टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत बड़ा सरमाया होगा जो हम आइंदा आने वाले अद्दुहा स्टूडेंट को हम दे सकते हैं, हम दूसरों को दे सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। और प्यारी साथी, आप चाहे तो अपने कैंपस का कोई एक थीम कलर भी बना सकती हैं, है ना, जैसे प्रेजेंटेशन का कोई एक कलर हो जाए या कोई इसके पीछे का बैकग्राउंड एक हो जाए, तो बड़ा अच्छा सा एक लुक आएगा कि भाई अब मिल्टन कैंपस के लोग आए ब्लू कलर में, है ना, अब टोरंटो के लोग हैं, तो इनके सारे स्लाइड को ये स्टाइल है, ये वाला फूल है ना। तो ये चीजें वो होती है जो खूबसूरती लेकर आती हैं, और ये सब आप कर सकती हैं, लेकिन आपका टाइम सेफ होगा। ओहो, ऑनलाइन ग्रीन लेगा, चलो ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप नाम वाम बताने में, इधर उधर की बात करने में ना आप टाइम जाया नहीं कीजिएगा, क्योंकि 3 मिनट है आपके पास, आप टू द पॉइंट आपको बात करनी है। इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश में करिए, उर्दू में करिए, जिस जबान में भी करिए आप। और लेकिन ये है कि बहरहाल चूंकि हमारी क्लास उर्दू में है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा उसको उर्दू में भी समझा सकती हैं, टोटली इंग्लिश में भी, आपके अपने ऊपर है, हमें इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा साथियों, बहुत ही मजा आ रहा है सीरत की क्लास में आपके साथ साथ। मेरा भी मुताला बढ़ रहा है, आपका भी मुताला रिविन बढ़ रहा होगा, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि हम टॉपिक वाइज सीरा को कवर कर चुके होंगे बहुत कुछ, और एक मजे की चीजों के साथ इंशाअल्लाह।
अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे जबरदस्ती बातचीत और मुलाकात होगी, और उस वक्त तक मैं आपको दुआ में याद रखती हूँ, आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।